to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? God bless. You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives of anymore. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What are you You're thinking gambling about? with What are you World thinking War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to respect to you. your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for What- the United States what of are you speaking America about? and the president who's trying to save your country. नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। दुनिया ने एक अभूतपूर्व नज़ारा देखा। ऐसी घटना आधुनिक इतिहास में कभी नहीं हुई थी, या शायद हुई हो, उसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। यह तो खबरें छन छन कर हम जैसे जो ऑब्जर्वर हैं उनके पास आती रही है कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होते हैं वो खासकर जब कमज़ोर देशों के नेताओं से बात करते हैं तो उनका लहजा बहुत तल्ख होता है, कई बार अपमानजनक होता है। He's all dressed up today. President Trump, what's your message to Vladimir Putin, sir? लेकिन ये बातें पर्दे के पीछे रहती हैं। जब वो साझा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, प्रेस के सामने यानी दुनिया के सामने आते हैं, तो वो एक सद्भाव का प्रदर्शन करते हैं, इज्जत का प्रदर्शन करते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में इस तरह के भी जो कायदे हैं, इस तरह के जो कायदे रहे हैं, वो कायदे हवा में उड़ते जा रहे हैं। वाइट हाउस के ओवल हाउस में शुक्रवार रात जो हुआ वो अद्भुत था। 40 मिनट तक बातचीत, तकरीबन 50 मिनट तक का वीडियो आपने देखा होगा जो सामने आया है। Tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. जेलेंस्की, वोलोदिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो वहाँ गए थे वाइट हाउस प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करने। बातचीत में डेलीगेशन था चूँकि, तो उसमें उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वांस भी थे, दूसरे अधिकारी भी थे, विदेश मंत्री रूबियो भी थे। और ये बातचीत का जो पूरा जो ये हुआ, ये सार्वजनिक किया गया, पत्रकारों को भी बुलाया गया। और ये बातचीत लगभग 39-40 मिनट तक तो ठीक ठाक चलती रही, डिप्लोमेटिक ढंग से चलती रही। लेकिन उसके बाद 7-8 मिनट तक जो हुआ वो उसे क्या कहा जाए, झड़प कहा जाए, तू मैं कहा जाए, झगड़ा कहा जाए, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो सभी शब्द उस पर फिट बैठते हैं। You're gambling with World War III. what do you You're think about? gambling What with do you World think War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. अब ये नौबत क्यों आई, ये इसको लेकर कुछ जानकारियाँ सामने आई हैं और कुछ कयास लगाए गए। जानकारियाँ ये हैं कि जेलेंस्की ने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से बातचीत में ये वादा किया था कि ट्रंप की जो मांग है कि यूक्रेन के पास जितने खनिज भंडार हैं उसका 50% हिस्सा वो अमेरिका को सौंप दें। जेलेंस्की ने कहा था कि वो इसके लिए तैयार हैं और इसके लिए समझौते का जो
ड्राफ्ट है वो लेकर वो आ रहे हैं, जिस पर कि वाइट हाउस में वो दस्तखत करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। लेकिन जब वो आए, वहाँ पहुँचे, तो ऐसी खबर है, ऐसी चर्चा है, अमेरिकी मीडिया ऐसी खबरों से भरा पड़ा है कि उन्होंने वो समझौते पर तो कायम रहे, लेकिन उसके एवज में उन्होंने सौदेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने हथियार मांगे, पैसा मांगा, आर्थिक मदद जिसे कहते हैं, और ये गारंटी मांगी कि अमेरिका उनकी सुरक्षा की गारंटी करेगा, यूक्रेन की, अगर रूस के साथ कोई शांति समझौता अमेरिका करता है। पूरी बातचीत में जेलेंस्की का जो रवैया था वो इस पक्ष में था कि शांति न हो, युद्ध जारी रहे, और उनका जो वो जिस मूड में आए थे, जिस ढंग से आए थे, उसने भी ट्रंप और उनके साथी जो उपराष्ट्रपति और जो दूसरे अधिकारी हैं, बताया जाता है कि उनको नाराज किया। It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. For you what that wasn't with me. That was with a guy named Biden who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama who gave you sheets and I gave you javelins. डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस की तरफ से जेलेंस्की को कहा गया था कि वो प्रॉपर डिप्लोमेटिक वेशभूषा में आए, लेकिन जेलेंस्की वही टी शर्ट पहने हुए आए जिसमें वो पिछले 3 साल से घूमते हैं जब से युद्ध हुआ है। He's all dressed up today. President Trump, what's your message to Vladimir Putin, sir? President Trump, President Trump, Vladimir Putin. Thank you very much. और वो बताते हैं कि ये चूंकि वो यूक्रेन की मिलिट्री के रंग का वो टी शर्ट होता है, तो सेना से एकजुटता जताने के लिए वो टी शर्ट वो पहनते हैं। तो एक तो विवाद वहाँ हुआ, और उसके बाद जब बातचीत शुरू हुई, बातचीत जब बिगड़ी, तो ये जो सारे मुद्दे थे, ये मुद्दे उभर कर सामने आ गए, और अंत में जब बात तू मैं पर आई, तो जो जेडी वांस हैं उपराष्ट्रपति, उन्होंने दखल दिया। उन्होंने बहुत दो टूक कहा कि जेलेंस्की को कि आप यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रति असम्मान आपने दिखाया है। आपने यहाँ आकर जिस ढंग से जो बातें की हैं, और ये बातें वही, उसमें वो बात भी शामिल है कि उनका जो जिस ड्रेस में आए, सौदेबाजी की कोशिश की। He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? और जब जेलेंस्की ने जेडी वांस को जवाब देने की कोशिश की, जवाब दे ही रहे थे, तो एक मौके के बाद ट्रंप ने दखल दिया। ट्रंप ने उनके ऊपर बहुत आक्रामक ढंग से उनसे बातें की। यह कहा कि वो शांति नहीं चाहते, वो शांति के रास्ते में बाधक बन रहे हैं। वो हर जगह ये कहते चल रहे हैं कि उन्हें युद्ध विराम वो नहीं करेंगे, वो युद्ध विराम नहीं चाहते। इस पर जेलेंस्की ने कुछ कहना चाहा, लेकिन ट्रंप ने कहा एनफ, बहुत काफ़ी हद हो गई, अब कोई बात वो नहीं, मैं आपकी नहीं सुनूंगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कहा। If you will speak very loudly about the war, He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet. You haven't been alone. In this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about If you didn't have our military equipment, you invited if me you to didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. और ये बातचीत फिर बहुत ही कड़वाहट के माहौल में ख़त्म हुई,
उसके बाद ये खबरें आई हैं कि वाइट हाउस उसके बाद लंच होना था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने लंच विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। उनके अधिकारियों ने जेलेंस्की से, जो कि वहीं वाइट हाउस में एक बगल का उनको रूम दिया गया था ठहरने के लिए, वहाँ से उनको कहा गया कि वो तुरंत यहाँ से चले जाएं, और उन्हें जाना पड़ा। वो वहाँ से निकल कर चले गए। जब वो चले गए तो बाद में ऐसी भी खबर है, एक तो पहले उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में जेलेंस्की से ये कहा गया कि क्या आप माफ़ी मांगने को तैयार हैं, तो उन्होंने इस पर ना तो नहीं कहा लेकिन हाँ भी नहीं कहा, और वो लंबी बातें करते रहे। यानी उन्होंने संदेश दिया कि उन्होंने कही कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार किया। President Trump said after your meeting that you disrespected him and the Vice President and all of America in the Oval Office. Do you think you did, and do you think you owe an apology to President Trump? We have to be very honest, and we have to be very direct to understand each other, because it's for us very necessary to President Trump, and I'm with all respect that he wants to finish this war, but nobody wants to finish more than we, because we in Ukraine, we are in this war, we are in this battle for freedom, for our lives. So I'm just telling that I think that we have to be on the same side, and I hope that the president on our side together with us, and that is very important to stop Putin. And I heard from President Trump a lot of times that he will stop the war, and I hope he will, and we need to pressure him with Europe, with all the partners. हालांकि बाद में ये खबरें आई हैं कि उन्होंने फिर से वहाँ आने की पहल पेशकश की और कहा कि वो जो डील है, जो समझौता है, उस पर वो बातचीत करने को तैयार हैं और इसलिए वो आना चाहते हैं। लेकिन बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया कि वो अब कोई बातचीत नहीं करेंगे। उसके तुरंत बाद ट्रंप ने एक स्टेटमेंट इशू किया। वो अपने ट्रूथ सोशल, जो उनका अपना सोशल मीडिया है, उस पर आजकल क्या, जब से 4 साल से पहले जब उन्हें ट्विटर ने बंद किया था, फेसबुक ने उन पर बैन लगाया था, तब से उन्होंने अपना सोशल मीडिया जो लॉन्च किया था उस पर उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया, उसको ट्विटर पे भी जारी किया, जो अब एक्स हो गया है। और इसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि अब शांति की संभावना नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की शांति नहीं चाहते। और उन्होंने कहा कि जो अमेरिका की तरफ से, उसमें उन्होंने नाराज़गी जताई उनके कुल व्यवहार पर। तो ये स्टेटमेंट में इन बातों को उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी कह दिया। अब इस घटनाक्रम का क्या नतीजा, यह बहुत से विश्लेषकों ने इसको ठीक ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा है पूरे यूरोप के लिए। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि जहाँ से चीज़ें बदल जाती हैं, उसके बाद फिर चीज़ें पहले जैसी वापस नहीं आती हैं, पहले जैसा माहौल नहीं रहता है। तो अब ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। दूसरी चीज़ यह है कि अमेरिका ने बहुत साफ, अभी इसके पहले उन्होंने ये बात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के सामने भी साफ कर दी थी कि वो पुराने ढंग से नेटो और जो एक अलायंस था, जो कलेक्टिव वेस्ट था, साझा पश्चिम था, उसको बनाए रखने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। और यूक्रेन के मामले में भी उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका अब यूक्रेन को कोई मदद नहीं देगा। और ये खबरें आने लगी उसके तुरंत बाद कि अमेरिका ने वहाँ पर ये जो पावर प्लांट्स हैं, बिजली के प्लांट्स हैं, चूँकि वो लड़ाई में काफ़ी नष्ट हो गए हैं, तो उसको फिर से बनाने का जो काम चल रहा है, उससे अमेरिका अपने को वापस करेगा, विड्रॉ कर जाएगा। और अन्य कई तरह की मदद भी रोकने की बात है। और जेलेंस्की के लिए जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है ये खबर कि अमेरिका अब उनके भ्रष्टाचार की, जो भी उनको पैसा दिया गया, वो पैसा कहाँ गया, किस चीज़ में खर्च हुआ। ट्रंप कहते हैं $350 बिलियन अमेरिका ने उनको दिए हैं, उन सब का वो हिसाब किताब करेगा। तो ये उसमें जेलेंस्की के लिए आने वाले समय में बहुत भारी मुश्किल पैदा हो जाएगी। लेकिन जेलेंस्की के लिए यह बात बहुत साफ है कि वो एक कठपुतली है, पपेट हैं, जिन्हें पश्चिमी देशों ने खड़ा किया। पश्चिमी देशों ने उनके माध्यम से रूस के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजी, उनकी जो स्ट्रेटजी थी, जो रणनीतिक मकसद था, वो हासिल करने की कोशिश की।
इसमें यूक्रेन तबाह हुआ, जो कि बार बार ट्रंप कह रहे थे कि आपका देश बर्बाद हो चुका है और अब मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यह जो कठपुतली के माध्यम से खेल रचा गया, इसमें ट्रंप भी बरी नहीं है। खुद उसमें उसी वीडियो में वो कहते सुने गए हैं कि मैंने तुम्हें टैंक दिया था, जेवेलिन टैंक्स दिए थे, बाकी ओबामा ने तो कुछ भी नहीं दिया। और बाइडेन ने उसे तो उन्होंने स्टूपिड कहा, मूर्ख कहा, जिसने तुमको $350 बिलियन दिए। तो यह एक बार फिर दुनिया के सामने साफ हुआ है कि जो कठपुतली होते हैं, अगर वो अपने मालिक के सामने रीढ़ के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो उनका वही हश्र होता है जो पहले अनेक कठपुतलियों का अमेरिका दुनिया में कर चुका है अपनी कठपुतलियों का। और कल दुनिया ने नज़ारा देखा जो जेलेंस्की के साथ हुआ, जो उनका अपमान हुआ, जिस ढंग से उनको वहाँ बहुत बेआबरू करके वाइट हाउस से बाहर किया गया। तो आज बस इतना ही, हम फिर आएंगे आपके पास नया अपडेट लेकर। आज आप सबको मेरा नमस्कार।